A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. In the last few videos, we already discussed what is the meaning of vouchers, what is the role of general when we record the transactions for the first time. So now in today's video, let's we revise and recapitulate the practical problem related to the accounting equations, how we will construct the accounting equations and how we will solve the practical problem related to the accounting equation. Let's we discuss in today's video. Okay, so without creating delay, let's we start with today's session, that is an accounting equations. Okay. First of all, in the last classes we already discussed about the four types of the accounting equation, जिसमें बेसिक accounting equation जो था वो था आपका assets equals to capital plus liability. This is a basic accounting equation, या कह सकते हो कि इसी accounting equations पे आपका बाकी सारा accounting equation बेस करता है. और अगर हम लोग फोकस करें, सो यू नो वेरी वेल एसेट्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल का क्या मतलब होता है, लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में और वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. और अगर हम इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इस पर जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. जैसे कि अगर क्वेश्चंस में कैपिटल इज नॉट गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हमें कैपिटल निकालना हो तो निकाल लो. अगर किसी क्वेश्चन में लायबिलिटी इज नॉट गिवन, सो विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल हम लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. और अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल एंड लायबिलिटी की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस कैपिटल एंड लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है, एसेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम एसेट्स की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay. Capital plus liability, and you know very well what is assets, what is capital and what is liability. So जब भी हम accounting equation create करेंगे, the construction of accounting equation, the construction of accounting equation is based on modern rule of accounting. यानी accounting equation जो हम बनाते हैं, जो हम फ्रेम आउट करते हैं, वो किस पे बेस्ड करता है, वो बेस्ड करता है So the modern rule of accounting, according to the modern rule of accounting, there are 5 types of account. Accounts को 5 पार्ट में बांटा गया है according to the modern rule of accounting. The first will be a assets account. Second will be a capital account. Third will be your liabilities account. Fourth will be your income account. Or last will be your expense account. So how many types of account under the modern rule of accounting? There are 5 types of the accounting: assets account, capital account, liabilities, income and expense account. और जब भी हम accounting equation कंस्ट्रक्ट करेंगे, whenever we construct the accounting equation, इस सिचुएशन में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि assets को हम asset साइड में, capital को हम capital साइड में, liabilities को हम liability साइड में शो करें. उसके साथ ही साथ हम लोग
So the first example related to the accounting equation is the first example. This is a basic accounting equation. Assets equals to capital plus liabilities. अब capital equals to assets equals to capital plus liability होता है कि नहीं होता है, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, और ये कैसे सेटिस्फाइड किया जाता है ये भी हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग ले लो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से, ठीक है। और अमाउंट डिटरमाइन कर लो ₹1 लाख कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया ₹1 लाख से। सो इस सिचुएशन में अगर आप आइडेंटिफाई करो, इस एग्जाम्पल में अगर आप ये फोकस करो, सो यू कैन सी दैट बिजनेस के एसेट्स में, कैपिटल में और लायबिलिटी में क्या चेंजेस आएंगे ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। अगर मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, ₹1 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के इस 3 एस्पेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर ये सोचना पॉसिबल हो गया, अगर ये आपने अच्छे से सोच लिया, सो आप 100% आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। और कैश किसका पार्ट होता है? कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। सो आपका एसेट्स कितने रुपए से बढ़ गया? ₹1 लाख से बढ़ गया। और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्टर एक्स ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैपिटल। सो कैपिटल भी आपकी ₹1 लाख से बढ़ी और आपका एसेट्स भी ₹1 लाख से बढ़ी। इज दैट क्लियर? तो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको पुट करो, सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता था? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो एसेट्स आपकी ₹1 लाख से बढ़ी और कैपिटल आपकी ₹1 लाख से बढ़ी, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। सो 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। सो यू कैन सी दैट आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट शो किया है, वो बिल्कुल ही करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स वी टेक वन मोर एग्जांपल। द सेकेंड एग्जांपल इज गोपाल परचेज फर्नीचर। सेकेंड इज, या गोपाल की जगह आप लिख दो मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर। मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर ₹10,000। अब इस ट्रांजैक्शन का एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मिस्टर एक्स इज द ओनर, अगर ओनर ने फर्नीचर खरीदा ₹10,000 का, सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका जो फर्नीचर है वो 10,000 रुपीज से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। एसेट्स भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, जब आप मार्केट जाएंगे फर्नीचर खरीदने के लिए, तो घर पे फर्नीचर आएगा, बिजनेस में तो फर्नीचर आएगा, लेकिन बिजनेस से जाएगा क्या? बिजनेस से जाएगा पैसा। विदाउट मनी आप फर्नीचर तो खरीदोगे नहीं। तो इस सिचुएशन में आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, सो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? एसेट्स आपकी 10,000 से बढ़ी और वही 10,000 से घट भी गई। सॉरी फॉर दैट, आपको मैं डिक्लाइन होगा। 10,000 से फर्नीचर बढ़ी और 10,000 से कैश के फॉर्म में एसेट्स घट भी गई। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। इधर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इधर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। सो अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में,
तो या तो इसके दोनों साइड चेंज होगा या तो कहीं कुछ चेंज होगा। गॉट इट? हाँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, यू कैन सी दैट। एसेट्स के फर्नीचर में वैल्यू बढ़ रही है लेकिन कैश में वैल्यू घट रही है, यानी एसेट्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो चेंज होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पेड किया 1000 रुपये का रेंट, अपने घर का मान लीजिए आपने किराए पर रहते हैं, आप लोगों ने 1000 रुपये रेंट पे किया। इस सिचुएशन में आपका कैश क्या हो गया? जेब से 1000 रुपये आपके चला गया, इससे आपकी एसेट्स क्या हो गई? कम हो गई। एंड रेंट इज रेंट पेड। व्हाट इज रेंट पेड? रेंट पेड इज ए इनकम और एक्सपेंस? इट इज एन एक्सपेंस। सो रेंट अगर आप पे कर रहे हो सो ये आपका एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस क्या हो गया? आपका बढ़ गया ना। रेंट पे किया इसका मतलब आपका खर्चा बढ़ गया। जैसे कभी आपका रेंट 1000 रुपये होता था, अब 2000 हो गया, तो आप कहते हैं रेंट 1000 रुपये बढ़ गया। तो अगर आपने रेंट पे किया 1000 रुपये, इसका मतलब आपका एक्सपेंस है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व करेंगे चीज़ों को, तो जब भी कोई इनकम होगा उससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो उससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। यानी अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, तो कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर बिजनेस में एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो उस सिचुएशन में आपकी कैपिटल क्या होती है? डिक्लाइन होती है। तो अगर आप देखो तो कैश तो कम हुआ 1000 रुपये से, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी, यहाँ पर आपकी कैपिटल क्या हो गई? 1000 रुपीज से कम हो गई, क्योंकि एक्सपेंस को हम एट द लास्ट अपनी कैपिटल से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। गॉट इट? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये तो एक और एग्जाम्पल पहले लेके चलते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹10,000। आपने 10,000 रुपये का सामान मिस्टर वाई को बेच दिया, और आगे हम जोड़ दे रहे हैं ऑन क्रेडिट पे सोल्ड किया। ठीक है? जब आप सामान बेचेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे, सो इससे आपकी एसेट्स क्या होगी? एसेट्स कम होगी। एसेट्स का कौन सा पार्ट कम होगा? एसेट्स का गुड्स का पार्ट कम होगा, जिसे हम लोग स्टॉक बोलते हैं। गॉट इट? दूसरा, आपने कैश में सेल नहीं किया है तो आपको कैश पैसा नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपके डेटर बढ़ जाएंगे। याद करिए, मैंने क्लास में आपको बताया था कि whenever we sold the goods on credit, जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, तो ये आपके डेटर क्रिएट होते हैं। डेटर आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक है? और यही अगर मैं चेंज कर दूँ, गुड्स सोल्ड की जगह गुड्स परचेज कर दूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो सिचुएशन में आपका एसेट्स जो है वो बढ़ जाएगा, यानी स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। और वहीं गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी का कौन सा पार्ट बढ़ जाएगा? क्रेडिटर्स का पार्ट बढ़ जाएगा। अब आप उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में फिट करके देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया है, जितने भी एग्जांपल्स बताए, अगर आप इसको इस पूरे इसमें अगर पुट करके देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में, सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन ऐसा होगा जो अकाउंटिंग इक्वेशंस को सेटिस्फाइड ना करे। ठीक है? तो उसको अपने पहले माइंड में नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट हो
After discussing the important concept related to the accounting equation, and you can see that how any accountant formed an accounting equation with the help of the modern rule of accounting. So we discuss the next topic of the chapter number 9, that is in general, which is also known as in books of original entry. In this topic we already discussed what is the meaning of general, what are the special characteristics of general, as well as we discussed about the various rules regarding the preparation of the general and the traditional rule for generalizing. The rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. The rule of personal account, debit the receiver, credit the giver. And rule of nominal account, debit all the expenses, losses, and credit all the incomes, profit and gains. So after discussing lots of the examples by which we justify the rule of generalizing, as well as the formation of accounting equations which are based on the modern or western rule of accounting, and you can see that there are 5 types of the account: assets account, liabilities account, capital account, income account and expense account. So now let's move to the next topic of this chapter, and it is a very important topic, you know very well. So in this chapter, firstly we discussed the meaning of goods in the last video session, and you can see that the meaning of goods means anything which are purchased by the businessman for resale. बिजनेसमैन कुछ भी खरीदे जिसका पर्पस होता है कि रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करना, इट इज कॉल्ड गुड्स. सो गुड्स से रिलेटेड दे आर बेसिकली 4 एक्टिविटीज डन बाय एनी बिजनेसमैन. गुड्स से रिलेटेड 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा. एक होता है या तो हम गुड्स को परचेस करते हैं, या तो सेल करते हैं, या तो परचेस किया हुआ सामान हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, या तो सेल्स किया हुआ कोई सामान कस्टमर हमें क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है. सो देयर आर 5 सिचुएशंस विच आर रिलेटेड टू द गुड्स. सो जब भी हम कोई गुड्स परचेस करते हैं, व्हेन एवर एनी बिजनेसमैन परचेस एनी गुड्स, इन दिस सिचुएशन द परचेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड. विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? द परचेस अकाउंट. And when any businessman sold the goods, so in this situation sales account should be credited. Similarly, if we return the purchase of goods, अगर हम कोई सामान परचेस किए और उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो सिचुएशन में we credited the purchase return account. We credited the purchase return account. So ये बहुत important rule है. Okay, and when we return, when any customer return the goods already sold, जो goods हमने already sold किया हुआ है कस्टमर को और वो कस्टमर हमें सामान लौटाता है, तो सिचुएशंस में सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है. सो परचेस का अपोजिट होता है परचेस रिटर्न. सो परचेस इज डेबिटेड एंड परचेस रिटर्न इज क्रेडिटेड. सेल्स क्रेडिट किया जाता है, तो सेल्स का रिटर्न भी क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, अपोजिट किया जाएगा. यू कैन सी दैट विद दिस एरो. गॉट इट? सो प्लीज नोट डाउन. नाउ you know very well what is the format of journal. There are 5 columns in the journal. The date, particular, LF, amount debit and amount credit. You know very well. We will show the date in the journal, how we will show the debit and credit items in the particulars as well as in the amount column, and LF column shows the ledger full. So you can see that जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, रिटर्न करते हैं या कस्टमर हमें रिटर्न करता है, तो सिचुएशन में गुड्स अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है. यानी हम गुड्स अकाउंट ओपन या क्लोज नहीं करते. उस सिचुएशन में डिफरेंट एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हैं. ठीक है, लेकिन
जब भी कोई बिजनेसमैन एसेट्स क्या करता है, परचेस करता है या सेल्स करता है, याद रखिएगा ये दोनों डिफरेंट टर्म है। अगर हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते हैं, बट अगर हम एसेट्स को खरीदते या बेचते हैं, एसेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम गुड्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम परचेज करते हैं फॉर नॉट फॉर सेल, फॉर टेकिंग अ बेनिफिट, फॉर टेकिंग अ सर्विसेज फ्रॉम सच एसेट्स। सो अगर एसेट्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो इस सिचुएशन में परचेज के केस में डेबिट किया जाता है कौन सा अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट किया जाता है। और एसेट्स के अकाउंट, अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं तो उस सिचुएशन में हम एसेट्स अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर एसेट्स खरीदा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, एसेट्स बेचा तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल और टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्काउंट, and let's we discuss how we will record the discount in the general. Let's we discuss it. So first of all, what is the meaning of discount? You know very well, discount means reduction in price. अगर हम कोई भी सामान 100 रुपए का है और इसे हम लेस देन द 100 रुपीज पे परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। सो सिंपली मीनिंग इज डिस्काउंट इज इट इज एन अलाउंसेस, it is an allowances, we have a sufficient space, so it is an allowances given by seller of goods out of selling price या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिडक्शन इन प्राइस। सो डिस्काउंट एक अलाउंसेस होता है जो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, विच आर प्रोवाइडेड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। कोई सेलर है जो गुड्स सेल कर रहा है और उसने अगर इस प्राइस को क्या कर दिया, घटा दिया, मतलब अलाउंसेस गिवन कर दिया फ्रॉम वेयर, आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस या रिडक्शन इन प्राइस। अगर प्राइस को थोड़ा घटा के आपको प्रोवाइड कर दिया, 10 रुपए की चीज़ अगर आपको 9 रुपए में दे दी गई, सो 1 रुपीज विल बी डिस्काउंट। सो डिस्काउंट को अगर हम लोग देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बेसिस पे तो दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और सेकंड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड? सेलर ने डिस्काउंट दिया, किसको डिस्काउंट दिया? टू द परचेजर। सो डिस्काउंट अलाउड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली जो सेलर होता है वो डिस्काउंट देता है और परचेजर उसे डिस्काउंट मिलता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। सपोज यू आर द परचेजर एंड वेंट टू द मार्केट और आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट परचेस किया और 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपको मिला कितने में? 95 रुपीज़ में। सो इन दिस सिचुएशन 5 रुपीज़ डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड बाय द कस्टमर। बट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सेलर ने क्या किया? डिस्काउंट गिवन किया। So that's why if any businessman allowed a discount, so it will be a loss, so it will be debited. ये expense होता है तो इसे हमें डेबिट करना चाहिए। In opposite, अगर हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसका प्रोडक्ट का परचेस का एक्चुअल प्राइस से हमें कम प्राइस मिला, कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिला, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, इनकम हो जाता है। So that's why discount allowed will be debited and discount received will be credited on the basis of their nature. Okay? ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट को हम दो एस्पेक्ट्स में मेजर करते हैं और
रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं। द फर्स्ट विल बी अ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड विल बी अ कैश डिस्काउंट। So what is trade discount? The discount which are given by seller to the purchaser for increasing the sell, यानी कि सेल को बढ़ाने के लिए अगर सेलर ने कोई भी नॉमिनल डिस्काउंट दे दिया है तो इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इट इज allowed by कौन गिवन करता है? अलाउड बाय होलसेलर to retailer at a fixed price या फिक्स परसेंटेज कह सकते हैं, एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। सो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को, एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे अगर किसी गुड्स की प्रिंटेड प्राइस जो है 100 है, तो जब भी होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है तो वो रिटेलर को क्या करता है? 100 रुपीज़ की प्रिंटेड वाला सामान वो 95 या 90 में प्रोवाइड करता है। सो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसके पीछे होलसेलर का एम ये होता है कि वो अपने सेल्स को इंक्रीज करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सके और एक परसेंटेज पे देता है। जैसे आप नॉर्मली अगर होलसेलर शॉप पे जाएंगे तो आपको नॉमिनल 10%, 15% का वो आपको फ्लैट डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा हर प्रोडक्ट में। सो यही फ़ायदा होता है आप जब भी कोई बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं या होलसेलर से सामान खरीदते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट का जो एम होता है वो बेसिकली सेल को इंक्रीज करना नहीं, बल्कि कस्टमर को प्रमोट करना कि वो जल्द से जल्द कैश पेमेंट करे। सो इट इज allowed to customer for making prompt और अर्ली पेमेंट। यानी कैश डिस्काउंट जो होता है वो सेलर जो है प्रोवाइड करता है किसको? कस्टमर को, ताकि वो जल्द से जल्द या समय से पहले पेमेंट कर दे। सपोज अगर मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, आई एम द होलसेलर, मैंने किसी को प्रोडक्ट सेल किया तो पहले मैं 100 रुपीज़ में उसको मैंने 90 में दिया, क्योंकि इट इज़ अ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। होलसेलर एज अ होलसेलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने रिटेलर को क्या करूँ? बल्क क्वांटिटी लेने के बदले उसे एक फ्लैट तरह का डिस्काउंट प्रोवाइड करूँ, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि रिटेलर जो है सारा पेमेंट इमीडिएटली कर ले। 50 या 60% उसने पेमेंट कर दिया और बाकी के लिए उसने 1 महीने का टाइम दिया। और मैंने अपने रिटेलर से ये भी कह दिया कि देखो, अगर आपने मुझे विदिन 1 वीक, विदिन 15 डेज अगर आपने मुझे पेमेंट कर दिया तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा विच इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट इज अ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओवर अ ट्रेड डिस्काउंट टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। ये मोटिवेट करता है कस्टमर को कि वो जल्द से जल्द या समय से पहले, टाइम से पहले पेमेंट कर दें। ओके, सो प्लीज नोट डाउन द टाइप्स ऑफ द डिस्काउंट। इसके पीछे काफ़ी और सारी भी इंफॉर्मेशंस हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसको ये नोट डाउन कर लीजिए।
So in today's video, firstly we discussed the basic important numerical topics like accounting equations, and you can see that how we will form the accounting equations, and thereafter we will discuss the meaning of goods and the different aspects of goods as well as the discount and the types of discount. So I hope today we cleared all the things very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.